in case of. Okay. And today let's start with a prayer. A prayer. Why do we do prayer? Because prayer gives instruction, give command to our mind कि आज हमारा पूरा दिन हमें कैसे पुल करना है, कैसे जीना है, आज पीस ऑफ माइंड बरकरार रखना है, दिल को ज्यादा हर्ट नहीं करना है, कुछ भी आए कहीं से भी, इधर से उधर से कहीं से भी कुछ भी अटैक हो रहा है, दैट कुड बी इमोशनल अटैक, दैट कुड बी फिजिकल अटैक, टेक इट इजी. One day you are surviving, more you are, just be grateful that today I got a day as a gift from the universe, and we have to thrive at any cost. So let's start with the prayer. Get a comfortable position for yourself, get a comfortable place for yourself, and your both both hand put on your heart, check your heartbeat. I always say to check heartbeat, क्योंकि बहुत लंबा लंबा अरसा हो जाता है हम अपने दिल को चेक ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे दिल है और आप उसे महसूस भी कर सकते हैं. जस्ट फील द हार्टबीट. आ रही है, हार्टबीट है, गुड. So close your eyes, put your both hands on your heart, take a deep breath, feel the rhythm of your heartbeat. Say thanks to your heart. And start command your mind, command your elder child, acknowledge your brain with a deep inhale. When you inhale this time, this air should go through the nostril, you have to feel in your throat and then feel that it's really going, in your stomach. It should be a deep, deep inhale. And exhale. And start telling yourself, say loudly, your mind should listen. हमारी आदत होती है कि हमें तेज सुनने की आदत होती है, जो जिन शब्दों में loudness होती है, that impact actually. And I will give you more example about this. But right now you have to speak up loudly with yourself. You can rise up from anything. You can completely recreate yourself. Nothing is permanent. You are not stuck. But you have lots of choices. Connect with the rhythm of your heartbeat. Tap on your heart. And tell yourself, you can think new thoughts. You can recreate your identity. You can become actually as you want. You can learn something new every day. You can create new habits
you can create new ideas. You can create new beginning, and you can create new opportunities. All that matters is that you are ready, you decided this, and you will never ever look back. I know I'm powerful. I know I'm divine. I know I'm a opportunity magnet, and I can thrive. Thank you, thank you, thank you so much, universe, for this new brand day in my life. Feel, imagine there is a sun, and that is rising in your mind. It's rising slowly, slowly, it's growing up. And there is only brightness, only brightness, only brightness. Inside your mind, inside your heart, your each and every cell is glowing, it's vibrating with the happiness, with the new energy. Because you know, you will bring change. You will bring change inside you. That will drive the change outside of you. Because universe chosen you. Because universe is giving you signal every day, every moment. You are working in universe company. You are appointed in his company, in universe company, to do magic on this earth, in this world, in your life, in your surroundings. And with each and every soul which will come in your connect. A deep breath. Tap on your heart. Say, well done, my boy. Thank you so much. You're always with me. Tap on your mind. And put a gentle, it could be anything. What make you soothe? What make you feel comfortable? Just tap on your mind. Okay, touch it and just, admire it. Thank you so much. Thank you so much for being with me to balance my days, to balance my life. And now tap and pat on your back. It's again, appreciate yourself. Appreciate your energy and say thank you, thank you, thank you, thank you so much to be here, to be always stand in my support. Say thanks to Almighty Universe or whomever you inspire so much. Come back to your surrounding and say thanks to your surrounding. This is something lasting. Say thanks to your surrounding. That's just giving you an environment to learn every day something new. Come back, come back, come back, come back, guys.
Take a deep breath. If there is a water, take a sip. Say thanks to your water also. आगे ना, सब लोग आगे. How are you feeling? अपने आप से मिलने का जो फील है ना, आपको वो खुशी कहीं नहीं मिल सकती जब आप अपने आप से मिलते हो, जब आप अपने आप को एडमायर करते हो. और ये कितना लंबा लंबा अरसा हो जाता है जब हम अपने आप की ना बात सुन रहे होते हैं, ना अपने आप से मिल रहे होते हैं, हम पूरी दुनिया की सुन रहे होते हैं. फिर देन यू स्टार्ट फीलिंग वॉइड, ना कि वो कुछ कम है, वो कुछ कम है. वो कुछ कम कुछ और नहीं है, वो वहां पे एक इंसान कम है और वो आप खुद होते हो. कि यू ऑलवेज ना अवॉइड योरसेल्फ, ऑलवेज इग्नोर योरसेल्फ, ऑलवेज पुट ऑन द बैक सीट. बट सबसे पहले अगर हम अपने आप को मिले ना, कुछ भी आप काम कर रहे हो, एनीथिंग, एनी डिसीजन यू आर टेकिंग इन योर लाइफ, बट पुट योरसेल्फ ऑन द प्रायोरिटी एंड यू नेवर एवर फील वॉइड. सबकी सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे और एक डिसीजन पे भी आ जाएंगे. Now today I'm going to talk about again save mind. सेव माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वही ना, हम सबके बारे में बात करते हैं, ये बचा लो, वो बचा लो, पानी बचा लो, सॉइल बचा लो, मतलब एवरी वे, एनर्जी बचा लो, इलेक्ट्रिसिटी बचा लो, सब बचा लो. बट इफ योर माइंड इज नॉट इन योर कमांड, do you feel your mind will support to save anything? So first you have to work on your mind, save your mind energy. So here is today's topic: how do we tackle every day with the mind challenges? हमारा माइंड कैसे एवरी डे डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस को फेस करता है. Okay, so if you want to put any remark from your side in the comment box, you can share. But here I am going to give some example. हम कैसे अपना जो अपना हमारा माइंड है एवरी डे, किसी भी एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, हर एक घंटे पे, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, एवरी टाइम आवर माइंड इज अ फ्राइटन मोड, अलर्ट, राइट. हमेशा अलर्ट मोड में रहता है. दूर से देख रहे हैं कोई चीज गिरने वाली, अरे रे रे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़. बच्चा दूर कहीं पे स्टेयर्स पे जा रहा है, वी ऑलरेडी इन अ फ्राइटन मोड, गिर सकता है ना, गिर सकता है. हम रोड पे हम जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं, ऑलवेज 1% चांस, डर लगता है, ऑलवेज इन अ फ्राइटन मोड, राइट. टीवी ज्यादा देर तक देख ली, आईज वीक हो जाएंगी. एवरी टाइम इन अ फ्राइटन मोड, अपने लिए भी और अपने डियर वंस के लिए, राइट. और कहीं कोई न्यूज चैनल पे कुछ देख लिया कि यहाँ पे क्राइसिस चल रही है, यहाँ पे ये हो गया है, उसका अलग हमें दुख है, उसका भी दुख है हमें. So our mind is taking so much load every moment. So how to balance that? अगर आप हर टाइम एक ही पर्सन पे लोड देते रहोगे, आप कहते ना यार इतना क्यों मेरे ऊपर, इतना क्यों प्रेशर है, सब कुछ मुझे क्यों करना है. तो जो आप ये जो आप बोल रहे हो ना, सब कुछ मुझे क्यों करना है, क्यों मेरे ऊपर इतना लोड है, राइट. ऑल दीज थिंग योर माइंड इज टेलिंग यू, क्योंकि उसके ऊपर लोड है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूज, क्यों इतना है. वो एक्चुअली वही आपको सिग्नल दे रहा है, क्यों इतना दे रहे हो भाई, बस वन बाय वन करो ना. अगर आपको काम करने तो वन बाय वन करो, प्रायोरिटाइज करो. व्हाई आर यू टेकिंग सो मच लोड. उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका एजेंडा 2 दिन के अंदर डेडलाइन देना है, क्योंकि आपने उसको इतनी सारी डेडलाइन दे रखी है अपने माइंड को. ऑफिस की भी डेडलाइन दे रखी है, घर की भी डेडलाइन दे रखी है, अचानक से कुछ और इमोशनल अटैक हो जाता है तो उसकी भी डेडलाइन दे रखी है. तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू 4 conditions, sorry not 4, it's only 3 condition when you really need to understand you have to save your mind. And what is those 3 conditions are?
First symptom is a fight mode. First symptom is a fight mode. आपका माइंड जब फाइट मोड में आ जाता है, यू एक्चुअली नीड टू सेव योर माइंड. फाइट मोड में कैसे आता है? इफ देयर इज सम आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है. आजकल मैं देखती हूँ कि फैमिलीज में सिर्फ ये इस पे भी आर्ग्यूमेंट होने लगा है कि हेल्दी खाना खाना है, तो वी आर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, बच्चे को चिप्स मत दो, किसी ने दे दिया आके टॉफी, हम नहीं चॉकलेट खिलाते हैं, इसको रखो आप इधर, राइट? एंड देन अनदर पर्सन इज सेइंग एक ले लिया तो क्या है, हो गया, राइट? यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू में जा रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है. या हम अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं और आपने अपने हस्बैंड से डिमांड कर लिया, आप भी सुबह उठा करो ना, देखो आपके जैसे 4 लोग उठते हैं एंड योर हस्बैंड इज नॉट रेडी टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, अगेन आर्ग्यूमेंट. So there are so many examples for arguments. हमें लगता है कि कुछ अच्छा करना है और सबसे पहले अगर उसके बारे में नॉलेज हमें मिलती है तो इट स्टार्ट टू शेयर, अरे देखो ये करना चाहिए, अच्छा आपको वो करना चाहिए. अनदर पर्सन इज नॉट रेडी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है. And same happening if that person with the come with the new idea, आपको भी नहीं फर्क पड़ रहा होता क्योंकि आपको लगता है मैं जो कर रही हूँ आई एम डूइंग बेस्ट, राइट? सो वी कम इन द फाइट मोड. फॉर एग्जाम्पल कि आपसे किसी ने कहा कि आपको ये करना चाहिए, दिस इज समथिंग गुड, तो आपने कहा आई एम ऑलरेडी डूइंग, आप कर लो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर लो, एंड देयर इज द आर्गुमेंट स्टार्ट. तो हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं. और उसी फाइट में, उसी आर्गुमेंट में हमें अचानक से कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट करता है, एंड वी आर कीपिंग इट विद सेल्फ फॉर 1 day, 1 month, 1 year. और जब ज्वालामुखी फूटता है तो सारे इमोशंस निकलते हैं, साल भर पहले वाले. तो वहां पे हमने क्या किया कि हमारा माइंड फाइट मोड में तो आया, एज वेल एज उसने एक लॉग बना के रख लिया माइंड में, ये जब ये बोलेंगे तो मैं ये विपन निकालूंगी. क्यों? मुझे ये याद रखना पड़ेगा, ये लॉग रखना पड़ेगा कि आपने एक दिन ये बात कही थी और आपने क्यों कही थी. एंड यू विल सी कि सामने वाला पर्सन भूल गया है तो और गुस्सा. आप भूल कैसे सकते हो? यू हर्ट मी एंड यू फॉरगॉट आल्सो. सो माइंड इज टेकिंग लोड, माइंड इज मेकिंग लॉग. Got my point? And second symptom is a flight mode. यहाँ पे क्या कर रहा है? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ऐसे ही अटैक होता है, इमोशनल अटैक होना शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ चाइल्ड एग्जाम्पल, अपने बच्चे को कुछ भी बोलना शुरू करते हो, पढ़ते नहीं हो, हर टाइम खेलना है, ठीक है, वाई आर यू वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम. सो इस टाइम में आपका बेबी विल कम इन द, या तो फाइट मोड में आएगा या तो फ्लाइट मोड में, या तो वो चुपचाप चला जाएगा वहां से कि मम्मी तो हमेशा बोलती रहती हैं, पापा तो हमेशा कहते ही रहते हैं, इनसे कौन बात करे. तो दैट इज द फ्लाइट मोड, रन अवे. कितनी बार ऐसा आपके साथ होता है कि कुछ हमें इतना हर्टिंग, मतलब इतना ज्यादा हर्ट हो गया कि वी रियली डोंट वांट टू टॉक, और हम जाके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं या लाइट स्विच ऑफ करके सो गए. दिस इज व्हाट? फ्लाइट मोड. भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है भागने की कोशिश कर रहे हो, अगेन यू आर इन स्ट्रेस, अगेन यू आर मेकिंग अ लॉग. गॉट माय पॉइंट? यू आर अगेन मेकिंग लॉग. ये दीज ऑल आर द सिम्टम्स टू नो कि मेरा माइंड स्ट्रेस में है. हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा माइंड स्ट्रेस में है. तो जब आप अटैक मोड में आते हो, यू आर इन स्ट्रेस. क्योंकि अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता उस बात से तो आप अटैक क्यों करते हो? और जब आप भागने की कोशिश करते हो, अगेन यू आर इन स्ट्रेस, क्योंकि आपको लगता है सामने वाले से बात करना बेकार है, देयर इज नो सेंस. एंड थर्ड symptom is what? Freeze. How many of you saw this scenario, especially child में या females में बहुत ज्यादा होता है.
फीमेल्स में और बच्चों में सबसे ज्यादा होता है फ्रीजिंग मोड. आपने कुछ कहा and person in front of you numb. Maybe that person is crying, or maybe that person is completely numb, silent. I know one of my cousin sisters, she always become statue, ऐसा like this, हिलती भी नहीं थी 15 मिनट के लिए ऐसे ही, उसके से हिलाना पड़ता था. सोच क्या रही हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो, बोलती क्यों नहीं हो, उस पर भी अलग से फिर से अटैक, मुंह बंद हो जाता है, बोलते नहीं हो, जवाब कहाँ चला गया, अब देखो अब बोलती बंद हो गई. इसी तरह के कमेंट्स आते हैं उसमें. Again you are in stress. So I'm discussing these 3 points. These are the symptoms when you are in a stress. So how to overcome it? कैसे overcome करें? Now come to the solution. First thing is resilience. Your mind have power to come back. कैसे? पावर ऑफ कम बैक. कैसे आपको ये सारी पावर कैसे आप लाओगे अपने पास कि मैं वापस से कम बैक करूं. सो फर्स्ट थिंग इज अटैकिंग मोड में आने से अच्छा टेक अ पॉज. टेक अ पॉज. इफ समवन इज सेइंग, if someone is reminding you are doing something wrong, or you did wrong, or you should not do this in the future, take a pause and just frame one word. We will discuss on this later. This is very simple word. We will discuss on this later. For right now, come back. Suppose there is always consequences of that action. अगर कहीं से भी आपको इमोशनल अटैक हो रहा है तो उसके पहले क्या हुआ है और उसके बाद क्या होना है. यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयर विद दिस, क्योंकि जो इमोशनल अटैक्स आते हैं वो सडनली आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू सर्व फूड योर हस्बैंड एंड सडनली कोई ऐसी बात होगी कि खाना खाने के जस्ट पहले ही एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया. व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ पॉज एंड टेल, I will discuss it later. Let's have a food right now. This is very precious to us. Got my point? See, आप बोलोगे मैं क्यों करूं, मैं क्यों. अगेन आप इसके लिए, क्योंकि आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए. सामने वाले को चाहिए या नहीं चाहिए, यू कांट टेक डिसीजन अबाउट दैट पर्सन. But if you are very sure, I want my peace of mind, you have to take the stand. No one else will take for you. Got my point? No one else will take you. Take decision for you, actually. So there are few words. Maybe that person in front of you, that person don't know how to manage stress, but you are here. If you are here to learn every day how to get peace of mind, how to get peace of mind, you will be the first person who will take out the Brahmastra and start defending yourself, but in a different way, in a witty way, in a very sensible वे. पहले वाला जैसा नहीं, पहले की तरह नहीं कि चलो तुमने 10 बातें कही मैं 20 सुनाऊंगी तुम्हें. मैं तो पुराना जो 10 वाला था ना वो भी सुनाऊंगी, वो तो याद नहीं है तुम्हें. तो अभी क्या करना है, रिस्पॉन्ड मोड में आना है. जब ऐसा आपको लगे कि समवन इज अटैकिंग टू योर इमोशनल, आपका जो इमोशनल स्टेट है उसको कोई अटैक कर रहा है, तो आपको सबसे पहले समझ जाना है कि मुझे तो ब्रह्मास्त्र निकालना है और ब्रह्मास्त्र से वितना है. वी विल डिस्कस दिस लेटर. लेट्स गो अहेड. जो करने जा रहे थे, कितने देयर आर, यू नो, मोस्ट ऑफ द वाइफ्स कहते हैं कि शॉपिंग के जस्ट पहले झगड़ा हो जाता है, घर से निकलने से पहले. अगेन यू हैव टू टेक केयर व्हाट इज द रिजल्ट. आपको शॉपिंग जाना है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि अभी फाइट करना है. तो अगेन से we will discuss this later. चलो फोकस करते हैं जो भी करते हैं. And this sentence actually work. This sentence actually works. I tried it. बहुत अच्छे से काम करता है.
जो पर्सन बहुत ज्यादा फ्यूरियस होगा, दैट पर्सन स्टार्ट बिकम काम, and slowly that person start understand you also कि she is not in mode of argue, she is not in mode of fight. And this kind of statement saves your life and saves your mind also. So this is one tip I gave you today. There is another tip I will share on the Wednesday, because there is again I am going to talk about the save mind. ऑफिस में प्रेशर होता है, कैसे क्विक, कैसे निकलो वहां से, क्या देयर आर, जैसे हम बोलते हैं ना, देयर आर सम पावरफुल वर्ड जो आपके माइंड को एनर्जी देते हैं, देयर आर सम पावरफुल सेंटेंसेस आल्सो. वी स्टार्ट टीच आवर child, we start teaching in the office premises also as well. We should start learn कि क्या वो 3-4 सेंटेंसेस हैं जिससे फटाफट पैचअप हो जाता है, जिससे फटाफट एनर्जी वापस आ जाती है, जिससे फटाफट हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है. ओके, सो इट्स ऑलरेडी 5:31. If you guys want to share some feedback, you can share. Even you guys can share. I am actually working on the Save Mind campaign. मैं सेव माइंड कैंपेन पे काम करूँ, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेव माइंड का जो स्ट्रगल होता है ना, एवरीडे बेसिस पे हम फेस करते हैं. हर दिन, हर मिनट, बहुत टाइम ऐसा मोमेंट आता है, चाहे वो चाइल्ड के साथ हो रहा हो, आपका अपने स्पाउस के साथ हो रहा है, दोस्तों के साथ हो रहा है, मेन ऑफिस प्रेशर, राइट? तो हाउ टू डील विद स्मॉल इमोशनल अटैक challenges, we are going to talk in the Save Mind campaign, and I am requesting you all, please participate. आप एक छोटा सा टिप शेयर कर सकते हो अगर आपको ऑफिस में कभी ऐसा चैलेंज आया हो, because we all are learning, we all are teaching to each other. तो आप छोटे छोटे मिनिमम 30 सेकेंड एंड मैक्सिमम 90 सेकेंड का वीडियो शेयर कर सकते हैं, और उसको रीब्रांडिंग करके, सेव माइंड रीब्रांडिंग करके वी विल शेयर विद द वर्ल्ड. So I need your support. I believe you all will contribute in the Save Mind campaign, जिसमें हम रोजमर्रा में हम क्या क्या challenges हमारा माइंड फेस करता है और उससे कब हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, we really don't know. So we really need to work on this. And yes, if you have, yeah, thank you Seema. Thank you. Yeah, so even I request you all, I want to hear you all. मैं आप सब लोगों से मिनिमम 30 सेकेंड का एक वीडियो रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग सेंड करें 5 AM पीपल क्लब में शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे सेव माइंड को सपोर्ट करते हो, आप कैसे अपना माइंड सेव करते हो, आप कैसे मेंटल पीस बैलेंस करते हो अपना डेली रोजमर्रा की जिंदगी में. आप ऑफिस जाते हो, आप घर रहते हो, आप पेरेंटिंग करते हो, कैसे करते हो, जब छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं तो कैसे ओवरकम करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. आई होप आई डिड जस्टिस विद टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच गाइस टू जॉइन दिस. या थैंक यू श्वेता, थैंक यू मंजुषा, थैंक यू एवरीवन हियर. Thank you, Indu. Thank you dear, thank you so much. So I hope you guys will participate. Thank you Natasha. Yeah. So we really need to work on our mind very closely. बस ऊपर से बात करने से नहीं होगा, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, छोटे छोटे टिप्स शेयर करने हैं. अगर कुछ आता और नहीं, टिप्स नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करिए, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे. ओके, एक टिप मैं शेयर करना चाहूंगी इंदु. हाँ जरूर अभी जरूर. नया सीखा. या आई एम वेटिंग फॉर दिस प्लीज. मैंने इसीलिए इतना टाइम छोड़ा है. बताइए. You have Great. So जैसे start with the 2 minutes work. तो 2 minutes work, जैसे अभी आपने लोड की बात की ना कि बहुत ज्यादा लोड है. लोड किन चीजों का है? 2-3 चीजें जो मैं आजमा रही हूँ एंड इट्स रियली वर्किंग. सो 2 मिनट्स का काम आज 2 मिनट्स में ही कर दो. जो भी मतलब जितने भी ओपन है आपके पास प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लेट्स से अगर मतलब
अगर आपका LIC का बिल है, व्हेन इट शोज अप और व्हेन इट ब्लोज अप, तो जब Yeah. ब्लो करता है ना, लास्ट डे आता है, तभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उस चीज को करते हैं। तो एफर्ट वाइज वो लगना 2 मिनट ही है उस चीज में, या 4 मिनट लगेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको 100 मिनट्स या 150 या 200 मिनट्स बना देते हैं व्हेन वी डू इट ऑन द लास्ट मोमेंट, है ना। तो एफर्ट वाइज इट इज 2 मिनट्स, बट माइंड वाइज इट गोज अप टू 100+ मिनट्स। So Exactly. start taking those small steps. एंड डिड यू नोटिस चेरी, मतलब इतना ज्यादा रश रहता है लास्ट मोमेंट पे कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो गलत हो जाएगा। उस टाइम अपना प्रेशर इतना देते हैं अपने माइंड पे, आपको पता है इतना ज्यादा हम प्रेशर दे रहे होते हैं अपने माइंड पे। इट्स लाइक कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेव योर लाइफ। वो लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली लाइफ हो जाता है। Right. And where exactly we waste our time. Normally मुझे ऐसा लगता था कि we waste our time watching Netflix और जो वीडियोस हम देखते हैं, रील देख रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। बट मुझे अभी 2 दिन पहले मैंने एक क्लास लिया, उसमें इतना अमेजिंग पॉइंट जो मेरे को एकदम हिट कर गया। That was we waste time in keep on thinking about the projects which are open. We keep on thinking ये open है, ये open है, ये open है। I mean, you may have a different perspective, but actual में हमारा टाइम वेस्ट वहां पे हो रहा है जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं with our open projects. Anything you would like to add, Hindu? मतलब अच्छे से आप अच्छे एक्चुअली से बताओ। मैंने ये सोचा है कि सेव माइंड पे वी ऑल विल स्पीक। आप में से और बोलो। फॉर थैंक यू सो मच शेरी टू पार्टिसिपेट, बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग सेम चैलेंज, थोड़ा डिफरेंट होता है। हम सभी सेव माइंड का क्या है ना, मुझे एक टाइम था कि देयर वाज अ टाइम कि मैं जब किचन के लिए लेट हो जाती थी अर्ली मॉर्निंग, आई ऑलरेडी फ्राइटेंड सो मच कि मुझे अभी मैं नीचे उतरूंगी तो मुझे लोग देख रहे होंगे कि अरे ये तो लेट उठी हैं, लेट आ रही हैं। अब मैं जैसे ही किचन में जाऊंगी, अरे ये नहीं बना, वो नहीं बना। आई ऑलवेज इन अ रश, एकदम मेरा माइंड इतना प्रेशर में होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्चुअली वॉर में खड़ी हूँ। बट स्लोली आई स्टार्टेड बैलेंस कि मैं क्यों इतना अटैक्स दे रही हूँ अपने माइंड को। नहीं हुआ, मैं ऐसे क्यों नहीं सोच सकती कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आई विल फिक्स अनदर डे। जो हो गया है उसका इतना स्ट्रेस क्यों है, जिसपे कोई कमांड ही नहीं है ना। मैं 6:30 को अब 5:30 तो नहीं कर सकती ना। तो आई लर्न विद दिस टाइम, मतलब ये मैं टाइम के साथ मैंने सीखा। या कोई आपसे नाराज हो गया है तो और आपको 1 महीने से सुकून चैन नहीं है और आप बात भी नहीं कर पा रहे हो, अगेन यू आर पुटिंग योर माइंड इन द स्ट्रेस। भाई खत्म करो ना, बात करो, या तो बात करो या तो मतलब सोच लो कि अभी नेक्स्ट क्या करना। बट उसको 1 महीने तक सोचते रहना दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी विद मी, मैं उसको कैसे मनाऊं, बस अपने आप ही सोचते रहो और कोई डिसीजन ना लो, अगेन यू आर पुटिंग योर माइंड इन स्ट्रेस। तो वैसे ही मैं आप सबसे चाहती हूँ, आप प्लीज शेयर करें गाइस, वी हैव टाइम, दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म। सेव माइंड पे सिर्फ इंदु थोड़ी ना बोलेंगी, अलका बोलेगी, रेशमा भी बोलेगी, प्रेरणा भी बोलेंगी, सीमा भी बोलेंगी, भक्ति भी बोलेगी, कोमल, सीमा, हेमा, वेयर आर यू गाइस? आई रियली नीड सपोर्ट ऑफ यू ऑल। सबका सपोर्ट चाहिए मुझे सेव माइंड पर। जब आप सब बोलोगे तब एक बड़ी कम्युनिटी हमें सुन रही होगी, और जो नहीं बोल पा रहे उन्हें सोल्यूशन मिल रहा होगा। हु इज नेक्स्ट? चेरी, इनिशिएट प्लीज। हु इज नेक्स्ट? ओके, हेमा, कम ऑन द बोर्ड प्लीज। हाँ जी। हेमा बताइए कैसे हम अपना माइंड सेव कर सकते हैं डेली बेसिस पे? What Sherry said, I completely agree with that. हम लोग सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। But I need new जैसे tip. मैं अपना एग्जांपल देती हो हूँ। गया। हाँ, वो तो हो गया। अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ बुक। बहुत दिन से मैं मतलब सोच ही रही हूँ कि मुझे उसको पूरा करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक what Sherry said, I'm going to follow that, even if मतलब something like that, even if I spend 5-10 minutes writing something daily, instead of thinking कि कैसे होगा पूरा। या कि वो आप ना अपने माइंड को स्ट्रेस ना देके उसको प्लान करके उसको फिनिश करना है, राइट? यस। कमाल, आर यू देयर?
Kamal is not, I think. Kamal, I'm requesting you to speak up about, Save Mind. Just follow 2-minute rule. Do it when it show up and not when it blow up. Wow. 2-minute rule. That's amazing. That's amazing. Yeah, Dr. Seema, you tell how to balance every day. Mind को कैसे सेव कर सकते हैं हम? For me, saving of your mind is never procrastinate the things. And second is don't be judgmental as far as relationship issue is there. Just don't be judgmental because you are vibrating in other frequency and the other person is vibrating in the other frequency. So पहले से ही judge मत कर लो कि हम ये करेंगे. And there should not be any revenge type of thing between the two. And बदला ले लेंगे and all such things. And very often it happens कि वो ego आ जाता है in relationships and all. That should not be there. कि I think that is from my side. That's good. Yeah. तो हमें ईगो नहीं लेना है. Again, one more takeaway, हमें ईगो पे नहीं लाना है, हमें जजमेंट नहीं देना है. We have to just focus on the next event पे focus करना है. Right? There is someone else who want to share. Shweta, come on. Shweta Mishra. Shweta is not available. And what about the Ramesh? Do you want to share some tip? How do you manage? Because I remember एक test कुछ type का मैंने last time. Yeah. Shweta, okay. Shweta, yes. Yeah. Share some tip. How do Yes, you yes. deal everyday basis पे? कब आपने क्या नया सीखा है? कैसे आप अपना mind save करते हो? एक तो इंदु मैंने सबसे ज्यादा ये सीखा है. पहले मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करती थी, तो सुना और मैंने बोल दिया, है ना. तो अब ये मैंने होल्ड करना शुरू किया है कि बस जब उन्होंने